Good evening, everyone. Today we are going to have the last session for haloalkanes and haloarenes. Before we move towards polyhalogenated compound, before we discuss those compounds, uses and the harmful effects of those compounds, let's pay attention to a question which is very important. This is question number 21 from your NCERT exercise. The question is very important. Let me add additional point here that in your board examination paper you will always have one such type of question. आपके हर चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए बी सी डी, रोड मैप काइंड क्वेश्चंस कहते हैं इसे, और यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज हॉट्स काइंड ऑफ क्वेश्चन. Every chapter of organic, even physical and inorganic, has this kind of the questions, and in your board exam you will definitely have one such question coming from organic section. Organic chemistry से एक ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा. देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है a primary alkyl halide which is having formula C4H9Br and it is shown as A. The compound is denoted as A. Reacted with alcoholic KOH, that means it is talking about elimination reaction. Alcoholic KOH से react किया गया and forms compound B. Compound B further is reacted with HBr, that means अब ये addition reaction हो रहा है to give compound C, and compound C is an isomer of compound A. Compound C जो मिला वो A का isomer है. A is further reacted with sodium metal and gives compound D, C8H18. But here the irony of the question here is that the C8H18 formed here because of the words reaction is different from the compound formed when N-butyl bromide is treated with sodium metal. इसका मतलब आपका C4H9Br प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तो है लेकिन वो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है. तो मैंने क्या किया, 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसके डिफरेंट पॉसिबल आइसोमर्स ड्रॉ करने की कोशिश की. N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड है नहीं, मैंने आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ड्रॉ किया. दिस इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड और 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. देखो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही है नहीं. अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हीट किया, एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ. ये आपका अल्फा कार्बन एटम है और ये बीटा कार्बन एटम है. तो आप देखिए यहाँ पे अनसैचुरेशन कम्स बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम, 2 मिथाइल प्रोपीन बना. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वापस इसमें HBr का एडिशन कर रहे हैं. तो HBr का एडिशन यहाँ मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग होगा. At this carbon bromine will get bonded, over this carbon hydrogen atom will bond. तो ये जो कंपाउंड बना ये कंपाउंड C है. This is 2 bromo 2 methyl propane and it is isomer of A. A का आइसोमर है. कौन सा आइसोमर? पोजिशनल आइसोमर. आगे देखिए इस कंपाउंड C का फर्दर, C का देखिए आगे क्या कर रहे हैं. C is reacted with sodium metal. वर्ड्स रिएक्शन हो रहा है और इसमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन. 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन. ओके, इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर फाइल में भी है. टुडे आई विल बी सेंडिंग यू इवन द एग्जाम्पलर फाइल. यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग इट. डोंट फॉरगेट टुडे इज 28. Today is 28 and on 30th you are having test. Okay, Pratham, now let's have discussion for polyhalogenated compounds. इसमें हम methylene chloride, that is dichloromethane, chloroform, that is trichloromethane, carbon tetrachloride या tetrachloromethane, then DDT, dichloro diphenyl trichloroethane, iodoform, triiodomethane,
इन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे और क्या बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ दीज कंपाउंड्स, मीन्स देयर यूजेस इन डिफरेंट फील्ड, इन द इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिक्स या फिर और कहीं और जगह पे यूज हो रहे हो किसी और इंडस्ट्रीज में, तो वो इंडस्ट्रियल यूजेस डिस्कस करेंगे। एंड देन मोर इम्पॉर्टेंट, देयर हार्मफुल इफेक्ट्स विल बी डिस्कस्ड। सो इसमें सबसे पहले है मिथिलीन क्लोराइड। मिथिलीन क्लोराइड इज अ कॉमन नेम एंड द IUPAC नेम इज डाइक्लोरोमीथेन। फॉर्मूला इज CH2Cl2. This compound finds its use as solvent in industries. इसे solvent की तरह यूज किया जाता है। It is used as a solvent for paint remover. Paint remover में इसको solvent की तरह यूज करते हैं। इसे aerosol propellants की तरह यूज किया जाता है, used in aerosol propellants. इसके अलावा it is used as a raw material for preparation of number of other organic chemicals in the industries. So these many uses are there. सबसे प्राइम यूज क्या है इसका? सबसे प्राइम यूज है एज अ सॉल्वेंट। इसके अलावा इसको पेंट रिमूवर में यूज किया जाता है, इसे एरोसोल प्रोपेलेंट्स में यूज किया जाता है और इसे रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी यूज किया जाता है फॉर लॉट मेनी अदर केमिकल्स। So as a paint remover, मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग पर्पस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। मान लो कहीं किसी मेटल पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले मेटल जो है ना अल्ट्रा क्लीन होना चाहिए, तो उस क्लीनिंग पर्पस के लिए भी मिथिलीन क्लोराइड का यूज किया जाता है। ये है यूजेस। अब समझते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स। हार्मफुल इफेक्ट ये है कि मिथिलीन क्लोराइड का यूज और मिथिलीन क्लोराइड से एक्सपोजर अफेक्ट्स आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये डायरेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है। सपोज इफ यू आर एक्सपोज टू द मिथिलीन क्लोराइड, इट कैन कॉज रेडनेस। आपके स्किन अगर इसके कांटेक्ट में है तो आपके स्किन पे रेडनेस हो सकता है, इचिंग हो सकता है। इफ योर आईज कम्स इन कांटेक्ट, यू कैन हैव इम्पेयर्ड विजन। अगर आंखों का कांटेक्ट में आ रहा है मिथिलीन क्लोराइड, देन यू कैन हैव इम्पेयर्ड विजन। एंड इफ यू आर एक्सपोज टू द हाई लेवल कंसंट्रेशन, अगर आप हाई लेवल, सपोज आपके आईज जो है वो हाई लेवल कंसंट्रेशन ऑफ मिथिलीन क्लोराइड के कांटेक्ट में आ रही है, देन यू कैन परमानेंटली लूज योर आई साइट। ठीक है, सो दिस इज अ डेंजरस केमिकल। ऐसा केमिकल नहीं है, इट्स अ वेरी हाईली डेंजरस केमिकल, अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कॉज इसके अलावा आपको डिजीनेस हो सकता है, फिंगर में नंबनेस हो सकता है, आपके स्किन रेड हो सकती है इसके कांटेक्ट में आने से, इम्पेयर्ड विजन हो सकता है इफ द आई कम्स इन कांटेक्ट, एंड हाई लेवल कंसंट्रेशंस कैन डैमेज योर आई साइट्स परमानेंटली। फाइन, तो ये यूजेस और हार्मफुल इफेक्ट्स, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नाउ क्लोरोफॉर्म और ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म was earlier used as a local anesthesia. इसको शुरू में लोकल एनेस्थेशिया की तरह यूज किया जाता था, बट प्रेजेंटली क्लोरोफॉर्म फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन मेनली एज सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है एंड इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फ्रेयॉन्स, फ्रेयॉन, रेफ्रिजरेंट्स, इनको प्रिपेयर करने के लिए क्लोरोफॉर्म को यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर आयोडीन। आयोडीन के लिए बहुत बढ़िया सॉल्वेंट है, और भी कई हैलोजेंस के लिए क्लोरोफॉर्म इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म वेरी नियर अराउंड जो आपने मिथिलीन क्लोराइड का हार्मफुल इफेक्ट देखा। क्लोरोफॉर्म से अगेन इफ यू आर एक्सपोज टू द क्लोरोफॉर्म इट विल अटैक ऑन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यही रीजन है कि क्लोरोफॉर्म को अब लोकल एनेस्थेशिया में यूज नहीं करते। पहले क्लोरोफॉर्म को लोकल एनेस्थेशिया की तरह यूज किया जाता था, अब नहीं करते,
क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। हाई कंसेंट्रेशन में ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इट कैन कॉज स्टूपर, कोमा, डिजीनेस, numbness and can ultimately lead to the death also. टिकट टू हेवन भी कट सकता है आपका। numbness, नम्ब हो जाते हैं, मतलब हमारे जो फिंगर हैं there will be no sensation if you are in high concentration contact of chloroform. इसके अलावा क्लोरोफॉर्म जो है that also affects our skin. आपका अगर स्किन क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट में आएगा तो वहां भी आपको ईचिंग होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। मिथिलीन क्लोराइड के बारे में बताया था, इम्पेयर्ड विजन कॉज करता है और इसके साथ साथ ये आपके कॉर्निया को बर्न कर देता है। मिथिलीन क्लोराइड बर्न्स योर कॉर्निया एंड द सेम कैन हैपन विद क्लोरोफॉर्म आल्सो इफ इट इज कमिंग इन कांटेक्ट डायरेक्टली विद द आई। ठीक है, क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड एक और बहुत ही खास बात है जो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दैट क्लोरोफॉर्म when left open in air or if it come in contact with the atmospheric oxygen in presence of light also, this get oxidized to a highly poisonous gas that is phosgene. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? A very highly poisonous gas which is phosgene. Chloroform converts into poisonous gas phosgene. नाम क्या है इस गैस का? phosgene. इसीलिए क्लोरोफॉर्म इज ऑलवेज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स। लेबोरेटरी में जब भी आप देखोगे क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क कलर्ड बोतल में स्टोर किया जाता है। और इसको स्टोर करने का एक और तरीका है दैट क्लोरोफॉर्म व्हेन पैक्ड इट इज फर्स्ट फिल्ड टू द ब्रिम ऑफ द बोतल, एकदम नेक तक उसको एकदम टॉप तक फिल किया जाता है और उसके बाद उसका कैप एकदम टाइटली सील किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं दैट इवन द ट्रेस अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन शुड नॉट बी गोइंग इनसाइड द बॉटल। ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी बोतल के अंदर नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज इट विल कन्वर्ट क्लोरोफॉर्म इनटू फॉस्जीन, है ना। हाईली पॉइजनस गैस है ये। फाइन, यस। सो ट्राईआयोडोमीथेन को अर्लियर डेज में एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता था। इट हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, लेकिन इसको यूज करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था दैट इट हैड अ वेरी ऑफेंसिव स्मेल। ट्राईआयोडोमीथेन का स्मेल बहुत हाईली ऑफेंसिव था, तो ऑफेंसिव स्मेल की वजह से इसका यूज एंटीसेप्टिक के लिए स्टॉप कर दिया गया। इसमें यह देखा गया कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो है वो खुद इस कंपाउंड की वजह से नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी किस वजह से है? ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन and not because of this compound itself. And as this compound has a foul smell, so its use as antiseptic was stopped. Other formulations of iodine was used, जिसका smell थोड़ा proper हो। आप जो आयोडेक्स यूज करते हो ना, उसमें भी आयोडीन के फॉर्मुलेशन ही होते हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी उसमें भी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 नाउ पॉपुलरली यूज्ड एज सॉल्वेंट। कहां यूज करते हैं इसको? एज सॉल्वेंट। बट इसके अलावा दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंटली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रेयॉन्स। इसको फ्रेयॉन के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आप देखो यहाँ पे क्लोरीन तो है ही, CCl4 ये है। अगर इसका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मैं स्वार्ट्स रिएक्शन करूं, याद आ रहा है स्वार्ट्स रिएक्शन? सपोज 1 मोल CCl4 लूं
एंड 2 मोल ऑफ AgF ले लो, सिल्वर फ्लोराइड, तो क्या मिलेगा आपको? CCl2F2, right? You will get CCl2F2. So this way, this is helpful in the preparation of फ्रेयॉन्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फ्रेयॉन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रिपरेशन में यूजफुल है। आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रेयॉन क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो नाम से समझ में आ रहा है, फ्रेयॉन सोच रहे होंगे क्या होता है, राइट? फ्रेयॉन्स का मतलब हुआ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑफ मीथेन एंड इथेन। मीथेन और इथेन का क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स जो होता है उसे फ्रेयॉन्स कहा जाता है, राइट? सो दो इंपॉर्टेंट यूजेस बताया, एक सॉल्वेंट की तरह और दूसरा यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रेयॉन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसके अलावा जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के, वो बाकी जो आपने क्लोरोफॉर्म और मिथिलीन क्लोराइड में डिस्कस किया वैसा ही कॉमन है। दिस ऑल्सो हैज इम्पैक्ट ओवर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिस ऑल्सो व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन विल कॉज रेडनेस ऑन द स्किन, आपको इचिंग होगा और बर्निंग सेंसेशन होगा। इसके अलावा व्हेन इट कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द आई इट कैन डैमेज योर कॉर्निया। इट हैज बीन फाउंड दैट दिस इज कार्सिनोजेनिक। टेट्राक्लोरोमीथेन इज कार्सिनोजेनिक। अगर आप टेट्राक्लोरोमीथेन के एक्सपोजर में हो तो इट कैन कॉज कैंसर इन द लॉन्ग रन। कार्सिनोजेनिक होता है ये। इसके अलावा ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे कि हमारे लीवर को, हमारे किडनी को डैमेज कर सकता है। जैसे क्लोरोफॉर्म में हमने डिस्कस किया, क्लोरोफॉर्म कैन मेक इट्स वे टू द स्ट्रेटोस्फीयर। ये वोलाटाइल होता है क्लोरोफॉर्म, तो वेपराइज होने के बाद ये स्ट्रेटोस्फीयर में जा सकता है। वैसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन ऑल्सो गो इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। और ये स्ट्रेटोस्फीयर में जाके क्या करते हैं मालूम है? स्ट्रेटोस्फीयर में जाके ये ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करते हैं। ओजोन लेयर के साथ ये फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ओजोन धीरे धीरे डिप्लीट होने लगता है। सो इट कैन कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें फ्रेयॉन्स। नेक्स्ट इज फ्रेयॉन्स। फ्रेयॉन के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, फ्रेयॉन्स क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। ये दूसरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कंपैरिजन में लेस हार्मफुल हैं। दैट इज व्हाई एट प्रेजेंट फ्रेयॉन्स आर मोस्टली यूज्ड इन द रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशंस। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन में फ्रेयॉन का ही यूज ज्यादा किया जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं दे आर लेस हार्मफुल। मैंने ये नहीं कहा कि दे आर नॉट एट ऑल हार्मफुल। Freons also can make its way to the stratosphere and there it can cause ozone depletion. ठीक है, फ्रेयॉन से भी ओजोन डिप्लीशन हो सकता है। याद रखना फ्रेयॉन है क्या? क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। मीथेन और इथेन के क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स को फ्रेयॉन कहते हैं। ठीक है। और इसमें लास्ट जो पॉलीहालोजिनेटेड कंपाउंड पढ़ रहे हो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है DDT। DDT का नेम है पारा पारा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है वो प्रिपरेशन भी आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डीडीटी के प्रिपरेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। वो भी क्या आता है वो भी बता देता हूं। आपसे पूछा जाता है अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी। तो the compound which is used in the preparation of DDT is this ट्राइक्लोरोइथेनॉल। क्या नाम है इसका? ट्राइक्लोरोइथेनॉल। 2 कार्बन है यहाँ पे और इस पे 3 कार्बन है।
तो आप कह सकते हो 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। और इसका कॉमन नेम होता है क्लोराल। कॉमन नेम क्या है? क्लोराल। सो क्लोराल की रिएक्शन होती है, क्लोराल की रिएक्शन होती है इससे, क्लोरोबेंजीन। क्लोराल इज रिएक्टेड विथ क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से इसकी रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन, H2O मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। और H2O मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका स्ट्रक्चर मैं यहां ऊपर लिखूंगा। The structure of the product formed is like this. This is DDT. क्या बना ये? DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये दोनों इस कार्बन एटम से ज्वाइन हो गए, इस कार्बन एटम से ये दोनों ज्वाइन हो गए, राइट। अब आप देखिए, अगर इसको हम पारा पोजीशन कहें इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला पारा डैश पोजीशन कहेंगे, इसलिए पारा पारा डैश डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, 2 फिनाइल ग्रुप है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, एंड 2 कार्बन है इसलिए इथेन, पारा पारा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 2 तरीके से पूछा जाता है, एक में डीडीटी का स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलर है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द कंपाउंड विच इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी इज, तो ये क्लोराल याद होना चाहिए। क्लोराल इज 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेन, इथेनॉल, ट्राइक्लोरो इथेनॉल। ठीक है, तो दिस इज अबाउट डीडीटी। डीडीटी के बारे में बताऊं तो डीडीटी जो है ना, इसका प्रिपरेशन लॉन्ग बैक हो चुका था, लेकिन प्रिपरेशन के बावजूद डीडीटी का यूज, उसका एप्लीकेशन मालूम नहीं था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, या वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, जब ये मलेरिया डिजीज काफी ज्यादा स्प्रेड होने लगा, at that time accidentally it was found that DDT is very effective against preventing the breeding of mosquitoes, and from then only it got started being used as insecticide. DDT को किस तरह से यूज करने लगे? as insecticide. DDT got started being used as insecticide, very effective against the prevention of ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। लेकिन आगे जाके ये देखा गया कि डीडीटी जो है इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक बार अगर ये किसी फूड चेन में एंटर हो गया तो ये फिर किसी की नहीं सुनता, ये उस फूड चेन के हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल में जाके एक्यूमुलेट होने लगता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कॉज करता है। तो बिकॉज ऑफ दिस नाउ डीडीटी हैज बीन बैंड। डीडीटी को बहुत सारे कंट्रीज में, हमारे इंडिया में भी बैन कर रखा है। यू विल नॉट बी गेटिंग डीडीटी एनीवेयर। हाँ, डीडीटी अभी भी इंडिया में और काफी सारे कंट्रीज में जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू आप ले सकते हो, एक जेन्युइन पर्पस बता के। जैसे मान लो अभी बारिश बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा बारिश होगी, हर जगह पानी भर जाएगा, तो क्या होगा? देखते हो ना, नगर पालिका वाली वैन जाती है कुछ स्प्रे करते हुए, छींटते हुए, कुछ पाउडर भी डालती है, तो दैट इज नथिंग, इट इज डीडीटी स्प्रिंकलिंग ऑयल। कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, ब्लीचिंग में तो सिर्फ क्लोरीन इंटेंस स्मेल देता है, लेकिन डीडीटी डाले तो दैट इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ऑल पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड। एक चीज क्लियर कर दूं कि पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आज तक सीबीएसई ने पूछा है तो वो पूछा है इससे,
इसको आप बैलेंस फॉर्म में लिख सकते हो। पूछा जाता है व्हाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स, तो रीजन क्या होगा? क्लोरोफॉर्म is highly sensitive towards light and oxygen. It converts into highly poisonous gas phosgene. So to prevent that, it is filled to the brim of the bottle and the cap is sealed tightly. है ना? और dark color होने की वजह से light will not be affecting it. Getting it? So I think that's all. इसमें एक दो रिएक्शन ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी में वो रिएक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वो रिएक्शंस आते हैं, जैसे हुंस-डिकर रिएक्शन। लेकिन वो रिएक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ाया हुआ है। इफ यू कैन रिकॉल हुंस-डिकर रिएक्शन आपको पढ़ाया है मैंने। हुंस-डिकर रिएक्शन इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। सिल्वर कार्बोक्सिलेट एंड ब्रोमीन रिएक्ट्स इन सुटेबल सॉल्वेंट और अल्केन का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोकार्बन्स के नोट्स में बताया हुआ है, राइट? So with this chapter haloalkane haloarine ends here. You have to complete NCERT exercise as well as the exemplar exercise, keeping board examination in view, and also on 30th 30 तारीख को you have test for this chapter. Okay? Okay, now let's continue with the conversion kind of the question. कल कुछ 4 क्वेश्चन किए थे, आज फिर आगे देखते हैं। प्रोपीन टू प्रोपाइन। फिर से जैसे मैंने आपसे कहा था, प्रोपीन और प्रोपाइन का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। दिस इज प्रोपीन, ठीक है? और शौर्य यहां देखिए, दिस वन इज प्रोपाइन। तो प्रोपीन और प्रोपाइन दोनों का स्ट्रक्चर क्लियर है या नहीं? अब यहां पे आपका हाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रेड 11th का लगेगा। आप याद कीजिए, ग्रेड 11th में अल्काइन के प्रिपरेशन में आपने एक मेथड पढ़ा था फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। याद आ रहा है? विसिनल डाइहैलाइड से आपने अल्काइन की प्रिपरेशन पढ़ी थी। तो यहां अल्कीन को आप बड़े आसानी से विसिनल डाइब्रोमाइड में कन्वर्ट कर सकते हो और उसका फिर एलिमिनेशन रिएक्शन करके आप प्रोपाइन बना सकते हो। तो मैं पहला रिएक्शन कर रहा हूं, ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट। देखिए आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक यूज यहां पे आ गया, सॉल्वेंट की तरह यूज किया। क्या बना? विसिनल डाइब्रोमाइड। अब विसिनल डाइब्रोमाइड को हम हीट करेंगे विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको शो कर रहा हूं, सपोज यहां से ब्रोमीन गया और यहां से एक हाइड्रोजन गया, तो ये फॉर्म करेगा ब्रोमोप्रोपाइल। दिस विल बी फॉर्मिंग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2Br। और इसके बाद इसका रिएक्शन किया जाता है, या तो आप अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कीजिए, या आप बोलो प्रथम NaNH2 के साथ हीट कीजिए। तो क्या होगा? NaNH2 के साथ वापस से यहां ब्रोमीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव होगा और यहां से यह हाइड्रोजन। As a result, you will have a triple bond formed between two carbon. ठीक है? Yes, NaBr यहाँ पे देखो, यहाँ पे KBr एंड H2O बाई प्रोडक्ट होंगे और यहाँ पे NaBr एंड NH3 बाई प्रोडक्ट होगा। फाइन? सॉरी, यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सनी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। मैं चाहता हूं इसमें मेरे बिना हेल्प के आप मुझे बताइए कि ये कन्वर्जन कैसे होगा।
स्वार्ट्स रिएक्शन करने के लिए पहले आपके पास क्लोरो इथेन या ब्रोमो इथेन होना चाहिए। कौन यहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंटली आके इसको एक बार में सॉल्व करके देगा? आ जाओ। सो इथेनॉल, इथेनॉल का रिएक्शन कर रहा है ये HCl, not Cl2, HCl। वेरी गुड। चलिए क्लोरोइथेन बन गया। क्लोरोइथेन के बाद स्वार्ट्स रिएक्शन, नहीं नहीं ऐसे नहीं, एरो पे लिखेंगे। ऐसे लिखने का मतलब हुआ कि वो बाई प्रोडक्ट बन रहा है, AgF। देखो आप ना KgF याद रखना तो आपको AgF याद रहेगा। KgF मूवी का नाम है ना, तो उससे KgF की जगह के हटा के ए कर दो, AgF, सिल्वर फ्लोराइड, है ना, सिंपल। देखिए कितना सिंपल, कितना इजी कन्वर्जन था ये। हर्षित, इथेनॉल ऑन रिएक्शन विथ HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, दैट मीन्स ये ग्रुप प्रोसेस के थ्रू गया। ग्रुप प्रोसेस हुआ, क्या बना? क्लोरोइथेन, और क्लोरोइथेन का फिर किया रिएक्शन विथ सिल्वर फ्लोराइड, स्वार्ट्स रिएक्शन, यू गेट इथाइल फ्लोराइड। इजी। चलिए नेक्स्ट तीसरा वाला बोलो। ब्रोमो मिथेन टू प्रोपेनॉन। एक्चुअली इस कन्वर्जन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो कॉन्सेप्ट आपने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा नहीं है अभी तक। द कॉन्सेप्ट विच इज इन्वॉल्व इन दिस, द कॉन्सेप्ट विच इज इन्वॉल्व इन दिस, यू हैव नॉट रेड दैट कॉन्सेप्ट येट। आपने वो रिएक्शन अभी तक पढ़ा ही नहीं है। कोई ऐसा रिएक्शन आया जिसमें कीटोन का फॉर्मेशन हुआ? नहीं ना, तो ये आपने पढ़ा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे बनेगा। हाँ, ब्रोमोमिथेन हुआ CH3Br और प्रोपेनॉन हुआ CH3COCH3। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में ये आएगा, ठीक है। हाँ, 1 ब्रोमो ही हुआ। नहीं, प्रोपेनॉल है या प्रोपेनॉन है? ON ही है ना, कीटोन है ना। हाँ, तो वो तो सेकंड कार्बन पे ही आएगा, नॉन टर्मिनल ग्रुप होता है। कीटोन इज अ नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, कभी भी वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आता। चलिए, तो अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, इसका रिएक्शन कर रहा हूं मैग्नीशियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बोलो क्या बनेगा? CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सनी अभी 2 दिन पहले एक रिएक्शन बताया हूं आपको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर रिएक्शन किसी एल्डिहाइड से किया जाए अदर देन मिथेनॉल तो क्या बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में बताया है। तो इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं इथेनॉल से। आई एम कैरिंग आउट दिस रिएक्शन विथ इथेनॉल। पहले इथेनॉल से रिएक्ट करके और उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर लूंगा। अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में बता रहा हूं क्या होगा। यहां कार्बन एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे दिस विल अटैक, ठीक है। और ये MgBr इसके साथ आएगा और फिर हाइड्रोलाइज होके MgBr हट जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा CH3 CHOH CH3।
क्या बना ये? प्रोपेन टू ऑल, दिस इज प्रोपेन टू ऑल। और प्रोपेन टू ऑल का आप ऑक्सीडेशन कर लो, कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा? प्रोपेनॉन। हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉर्म हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विल गिव कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कीटोन। और कीटोन के रिडक्शन से क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। ये रिएक्शन आपने अभी इस चैप्टर में पढ़ा नहीं है, लेकिन ये आगे पढ़ने को आएगा। अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स में भी आएगा और एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आएगा। चलिए इसको पॉज करो। इन फाइन, पहले दोनों का स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज ब्यूट 1 इन एंड दिस इज ब्यूट 2 इन। पहले आप सबसे पहले मार्कोनिको एडिशन कर लो तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन मिलेगा, और उसके बाद फिर एलिमिनेशन कर लो तो सेजेफ रूल लगेगा और प्रोडक्ट मिलेगा ब्यूटोइन। आ जाओ, कौन करेगा? शौर्य, शौर्य, मैं हूं यहां हेल्प करने, आ जाओ। तो क्या हुआ? HBr मार्कोनिको एडिशन and after that you have to do elimination अल्कोहलिक KOH के साथ। आ जाइए, जरूर होगा। सेजेफ रूल में मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। आ जाइए, बोलो कौन सा, रेड चाहिए या ब्लैक? ब्लैक ही लो। पहले क्या करेंगे? एडिशन ऑफ HBr। वेरी गुड। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देना, आप तो मुझसे भी छोटा लिखते हो। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, पेरोक्साइड तो फिर वो एंटी मार्कोनिको रूल हो जाएगा। मार्कोनिको करना है ना। चलिए चलिए, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, करो करो। CH के साथ क्या आ जाएगा? वेरी गुड। और ये वाले कार्बन पे क्या ऐड होगा? हाइड्रोजन। वेरी गुड। अब हीट विथ अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH, हीट, यस। अब एलिमिनेशन होगा और ये फॉर्म हो जाएगा, राइट, है ना। एक्चुअली 2 प्रोडक्ट के पॉसिबिलिटी है, 1 ब्यूटीन और ब्यूटोइन, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? एज पर सेजेफ रूल दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, है ना। ठीक है, देखा, डर के आगे जीत है ना। चलिए, सो आज इतने क्वेश्चंस रखते हैं। अब इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अगर हो, यू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आज पूछ लीजिए, ठीक है। 1 मिनट जरा ऑन करो। क्या ऑन किया? ओके, सो keep solving your NCERT exercise and also the NCERT exemplar questions. If you find difficulty in any of the question there, you can share it in the comment section. You can ask me personally also, but make sure that your haloalkanes, haloarine, NCERT exercise, everything gets completed by tomorrow. Then only you can have a thorough revision, and day after tomorrow on Saturday or on Sunday, no, not on Sunday, on Saturday you will have test. Fine.